بھگت سنگھ برصغیر کی آبادی کی جدوجہد کی تاریخ میں ایک ایسا نام ہے جو محض ایک فرد یا ایک انقلابی تنظیم تک محدود نہیں بلکہ ایک پورے عہد، ایک فکر اور ایک نظریے کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ ان نوجوانوں میں شامل تھے جنہوں نے کم عمری میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ غلامی کے ساتھ جینا زندگی نہیں بلکہ ایک مسلسل ذلت ہے، اور اس ذلت سے نجات کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو وہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ بھگت سنگھ کی زندگی اس شعوری بغاوت کی مثال ہے جو محض جذباتی رد عمل نہیں بلکہ گہرے مطالعے، فکری پختگی اور سماجی شعور کے نتیجے میں جنم لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صرف ایک انقلابی مجاہد کے طور پر نہیں بلکہ ایک سنجیدہ سیاسی مفکر اور سوشلسٹ نظریہ دان کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ بھگت سنگھ کی پیدائش برطانوی ہندوستان کے اس دور میں ہوئی جب پورا برصغیر سامراجی اقتدار کے نشے میں جکڑا ہوا تھا اور آزادی کی تحریک مختلف شکلوں میں پنپ رہی تھی۔ ان کی پیدائش 27 ستمبر 1907 کو پنجاب کے ضلع لیل پور کے ایک گاؤں پنگا میں ہوئی جو آج پاکستان کے ضلع فیصل آباد کا حصہ ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستانی معاشرہ سیاسی غلامی، معاشی استحصال اور سماجی ناانصافی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ ایسے ماحول میں جنم لینے والا یہ بچہ آگے چل کر اسی نظام کے خلاف بغاوت کی علامت بن گیا۔ بھگت سنگھ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس میں حب الوطنی اور مزاحمت کی روایت نسلوں سے چلی آ رہی تھی۔ ان کے والد سردار کرشن سنگھ سندھو خود برطانوی حکومت کے خلاف سرگرم انقلابی تھے اور آزادی کی تحریک میں عملی کردار ادا کر چکے تھے۔ وہ نہ صرف سیاسی جلسوں اور احتجاجی سرگرمیوں میں شریک رہے بلکہ کئی بار گرفتار بھی ہوئے، جس کے باعث خاندان کو مالی اور سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی والدہ ودیاوتی کور ایک مضبوط ارادے کی مالک خاتون تھی جنہوں نے مشکل حالات میں خاندان کو سنبھالا اور اپنے بچوں میں خودداری، سچائی اور مزاحمت کا جذبہ پیدا کیا۔ بھگت سنگھ کی تربیت تو ان کے والدین کا یہ شعوری کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ بھگت سنگھ کے دادا ارجن سنگھ سکھ تاریخ اور روایات سے گہری وابستگی رکھتے تھے اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور کی عسکری روایات سے متاثر تھے۔ بھگت سنگھ کے چچا اجیت سنگھ اور سورن سنگھ بھی آزادی کی جدوجہد میں سرگرم رہے۔ اجیت سنگھ 1907 کی اس تحریک میں پیش تھے جو پنجاب میں زرعی قوانین اور نہری کالونائزیشن کے خلاف اٹھی۔ اس تحریک نے برطانوی حکومت کو سخت تشویش میں مبتلا کر دیا تھا اور بالآخر اجیت سنگھ کو جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ یہ تمام واقعات بھگت سنگھ کے شعور پر گہرے اثرات مرتب کرتے رہے اور انہوں نے بچپن ہی سے یہ سیکھ لیا کہ آزادی محض نعروں سے نہیں بلکہ قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ بھگت سنگھ کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مقامی اسکول میں ہوئی جہاں انہوں نے بنیادی علوم حاصل کیے۔ وہ شروع ہی سے غیر معمولی ذہانت اور تجسس رکھنے والے طالب علم تھے۔ مطالعہ ان کا شوق تھا اور وہ نصابی کتابوں کے علاوہ بھی تاریخ اور سیاست سے متعلق مواد پڑھنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ 1919 میں پیش آنے والا جلیانوالہ باغ کا سانحہ ان کی زندگی کا ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ اس واقعے میں نہتے اور پرامن لوگوں پر گولی چلائی گئی جس نے پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس وقت بھگت سنگھ محض 12 برس کے تھے، مگر اس واقعے نے ان کے دل و دماغ پر ایسا گہرا نقش چھوڑا جو کبھی مٹ نہ سکا۔ وہ اس مقام پر گئے، مٹی کو ہاتھوں میں اٹھایا اور اس خون آلود زمین کو آزادی کی جدوجہد کی علامت سمجھ کر اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ سانحہ بھگت سنگھ کے اندر موجود سوالات کو بغاوت میں بدلنے کا سبب بنا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ برطانوی حکومت محض ایک سیاسی قوت نہیں بلکہ ایک ظالمانہ نظام ہے جو طاقت کے زور پر عوام کو کچل رہا ہے۔ اسی احساس نے انہیں قوم پرستانہ سرگرمیوں کی طرف مائل کیا۔ بعد ازاں ان کا خاندان لاہور منتقل ہوا جہاں انہیں ایک ایسا ماحول ملا جو سیاسی طور پر زیادہ متحرک تھا۔ تعلیم کے لیے انہوں نے نیشنل کالج لاہور میں داخلہ لیا جو قوم پرست فکر کا حامل ادارہ تھا۔ اس کالج میں تعلیم محض نصابی نہیں بلکہ فکری اور نظریاتی بنیادوں پر دی جاتی تھی۔ یہاں بھگت سنگھ کو ایسے اساتذہ اور ساتھی میسر آئے جنہوں نے ان کے ذہن کو وسعت دی۔ انہوں نے تاریخ، فلسفہ، معاشیات اور سیاسی نظریات کا گہرا مطالعہ کیا۔ اس مطالعے نے انہیں محض جذباتی قوم پرست نہیں بلکہ ایک سنجیدہ انقلابی مفکر بنایا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندوستان کی آزادی کا مطلب صرف انگریز حکمرانوں کا انخلاء نہیں بلکہ اس پورے استحصالی نظام کا خاتمہ ہے جو چند طبقوں کو فائدہ اور اکثریت کو محرومی میں مبتلا رکھتا ہے۔ نیشنل کالج لاہور میں تعلیم کے دوران بھگت سنگھ کی شخصیت میں فکری گہرائی اور نظریاتی پختگی پیدا ہوئی۔ یہاں انہوں نے محض آزادی کے نعروں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ
आज़ादी के हकीकी मफ़हूम को समझने की कोशिश की। वो तारीख के मुताले के ज़रिए जानने लगे कि दुनिया के मुख्तलिफ माशरों में जुल्म और इस्तेसाल के खिलाफ तहरीकें कैसे उभरी और किन असबाब की बिना पर कामयाब या नाकाम हुई। इसी दौरान उन्होंने यूरोपीय इनकलाबी तहरीकों, रूसी इनकलाब और सोशलिस्ट नज़रियात का तफसीली मुताला किया, जिससे उनके जहन में ये तसव्वुर मजबूत हुआ कि सियासी आज़ादी उस वक्त तक नामुकम्मल रहती है जब तक मुआशी और समाजी इंसाफ कायम न हो जाए। भगत सिंह मजहब, रिवायत और समाजी ढांचों पर सवाल उठाने से नहीं घबराते थे। उनका मानना था कि अंधी तकलीद और फरसुदा तसव्वुरात कौमों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने अक़लियत पसंदी और साइंसी फिक्र को अपनी सोच की बुनियाद बनाया। वो उस नतीजे पर पहुंचे कि इंसान को अपने अमाल का जिम्मेदार खुद होना चाहिए और किसी को माफूकुल फितरत सहारे की बजाय अमली जिद्दोजहद पर यकीन रखना चाहिए। इन ख्यालात का इज़हार बाद में उनकी तहरीरों और खुतूत में वाज़ेह तौर पर नजर आता है, जिनमें उन्होंने निहायत जुर्रत के साथ अपने नजरियात पेश किए। उसी जमाने में भगत सिंह ने अमली इनकलाबी सियासत में कदम रखा। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से वाबस्तगी इख्तियार की, जो बरतानवी इक़्तिदार के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद की हामी तंजीम थी। बाद उनकी फिक्री काविशों के नतीजे में उस तंजीम का नाम तब्दील करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया, ताकि ये वाज़ेह किया जा सके कि मकसद सिर्फ इक़्तिदार की तब्दीली नहीं बल्कि एक सोशलिस्ट और मुनसिफाना समाज का क़याम है। भगत सिंह का किरदार उस तंजीम में महज एक कारकुन का नहीं था, बल्कि वो उसके नजरियाती मैमारों में शुमार होने लगे। उन्होंने नौजवानों को बेदार करने के लिए नौजवान भारत सभा की बुनियाद रखी, जिसका मकसद नौजवान नस्ल में सियासी शऊर पैदा करना और उन्हें आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए मुनज़्ज़म करना था। उस प्लेटफार्म के जरिए भगत सिंह ने तकारीर की, मज़ामीन लिखे और अवामी इज्तिमाअत में शिरकत की। उनकी गुफ्तगू में जोश के साथ साथ दलील और शऊर भी होता था, जो सुनने वालों को महज जज्बाती नहीं बल्कि फिक्री तौर पर भी मुतहर्रिक कर देता था। वो नौजवानों को ये बावर कराते थे कि आज़ादी की जिद्दोजहद कोई रोमानवी तसव्वुर नहीं बल्कि एक संजीदा और तवील अमल है, जिसके लिए नज़्म व ज़ब्त, कुर्बानी और मुस्तकिल मिजाजी दरकार होती है। 1998 में लाला राय की वफात ने भगत सिंह को शदीद सदमे से दोचार किया। साइमन कमीशन के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के दौरान पुलिस तशद्दुद के नतीजे में लाला राय जाँ पर न हो सके। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस वाक़े को बरतानवी जुल्म की एक और मिसाल के तौर पर देखा और ये फैसला किया कि इस नाइंसाफी का जवाब देना जरूरी है। उसी तनाजुर में जेपी सैंडर्स को निशाना बनाया गया, जिसे लाला राय की मौत का जिम्मेदार समझा जाता था। ये कार्रवाई एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत अंजाम दी गई, जिसमें भगत सिंह ने बरह रास्त हिस्सा लिया। इस वाक़े के बाद भगत सिंह को ज़ेरे ज़मीन जाना पड़ा, मगर वो खामोश नहीं हुए। उन्होंने ये महसूस किया कि सिर्फ खुफिया कार्रवाइयाँ अवामी शऊर को बेदार करने के लिए काफ़ी नहीं है। उसी सोच के तहत उन्होंने मरकजी कानून साज असम्बली में बम फेंकने का फैसला किया। ये बम उस अंदाज से फेंके गए कि किसी की जान न जाए और मकसद सिर्फ ये हो कि हुकूमत की तवज्जो अवामी मसाइल और इनकलाबी मुतालबात की तरफ मबजूल कराई जा सके। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने फरार होने की बजाय खुद गिरफ्तारी दी, ताकि अदालत के प्लेटफॉर्म को अपने नजरियात के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अदालत में भगत सिंह का रवैया गैर मामूली था। वो एक मुल्ज़िम की बजाय एक नजरियाती नुमाइंदे के तौर पर पेश आए। उन्होंने अपनी तकारीर और बयानात में वाज़ेह किया कि वो तशद्दुद को बतौर मकसद नहीं बल्कि एक मजबूरी के तौर पर देखते हैं और उनकी असल जंग एक ज़ालिमाना निज़ाम के खिलाफ है। अदालत के कटहरे में खड़े होकर भी उन्होंने खौफ या निदामत का इजहार नहीं किया, बल्कि पूरे वक़ार और एतमाद के साथ अपने नजरियात पेश किए। उनके नारों और बयानात ने पूरे हिंदुस्तान में हलचल मचा दी और इनकलाब जिंदाबाद अवामी जिद्दोजहद की अलामत बन गया। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह को जेल में सख्त हालात का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने यहाँ भी मज़ाहमत का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने सियासी कैदियों के हुकूक के लिए भूख हड़ताल शुरू की, जिसका मकसद ये था कि अंग्रेज हुकूमत सियासी कैदियों को आम मुजरिमों के बराबर न समझे। ये भूख हड़ताल कई हफ्तों तक जारी रही और इस दौरान भगत सिंह की सेहत बुरी तरह मुतासिर हुई, मगर उनके हौसले में कोई कमी न आई। उनके साथी जतन दास की शहादत ने उस तहरीक को मजीद तकवीत दी और पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी। जेल में कैद के दौरान भगत सिंह की शख्सियत एक नए और ज्यादा गहरे और फिक्री मरहले में दाखिल हो गई। कैद व बंद की सोबतें उनके हौसले को तोड़ने की बजाय उनके शऊर को मजीद पुख्ता करती चली गई। अंग्रेज हुकूमत
का मकसद ये था कि सख्त हालात, जिस्मानी मुशक्कत और तन्हाई के जरिए इन इनकलाबियों की सोच को कुचल दिया जाएगा। मगर भगत सिंह के मामले में उनका उल्टा असर हुआ। जेल उनके लिए महज कैद खाना नहीं रही बल्कि एक फिक्री दरसगाह बन गई, जहां उन्होंने मुतालिया, गौर व फिक्र और तहरीर के जरिए अपने नजरियात को मजीद वाज़ेह और मजबूत किया। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए बड़ी तादाद में किताबें पढ़ी। फलसफा, तारीख, सियासी नजरियात और समाजियात उनके पसंदीदा मौज़ूआत थे। इसी दौरान उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि अगर आवाम शऊरी तौर पर बेदार न हो तो महज चंद इनकलाबी कार्रवाइयाँ किसी देर पा तब्दीली का सबब नहीं बन सकती। उनका यकीन पुख्ता होता गया कि असल इनकलाब जहनों में जन्म लेता है और बंदूक या बम महज एक वक्ती जरिया हो सकते हैं, मुस्तकिल हल नहीं। इसी फिक्री इर्तिका के दौरान भगत सिंह ने अपने मशहूर मज़ामीन और खुतूत तहरीर किए, जिनमें उन्होंने मजहब, सियासत, कौम परस्ती और इनकलाब जैसे मौज़ूआत पर खुलकर इजहार ख्याल किया। उन तहरीरों में सबसे ज्यादा तवज्जो इस बात पर दी गई कि इंसान को अपने अमाल का खुद जिम्मेदार होना चाहिए और किसी गैर मरई ताकत के सहारे पर तकिया करने के बजाय अमली जिद्दोजहद पर यकीन रखना चाहिए। उनके ख्यालात इस बात की अक्कासी करते हैं कि वो अंधी अकीदत के कायल नहीं थे बल्कि दलील, शऊर और इंसान की इज्तमाई ताकत पर यकीन रखते थे। यही वजह है कि उनकी तहरीरें आज भी नौजवान नस्ल को सोचने और सवाल उठाने की तहरीक देती हैं। इधर अदालत में चलने वाला मुकदमा भी एक अहम मरहले में दाखिल हो चुका था। लाहौर साजिश केस के तहत भगत सिंह पर बरतानवी हुकूमत के खिलाफ बगावत, कत्ल और रियासती निज़ाम को चैलेंज करने के इल्जामात आयद किए गए। मुकदमे की कार्रवाई एक खुसूसी ट्रिब्यूनल के जरिए चलाई गई, जिसके तरीक़ेकार पर उस वक्त भी सवालात उठाए गए और बाद में भी उसे गैर मुनसिफाना करार दिया गया। भगत सिंह ने अदालत को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जहां वो अपने नजरियात को आवाम तक पहुंचा सकते थे। उनके बयानात महज कानूनी दिफा नहीं थे बल्कि एक मुकम्मल सियासी मंशूर की हैसियत रखते थे। अदालती कार्रवाई के दौरान भगत सिंह ने कभी रहम की अपील नहीं की। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह था कि अगर उसकी सजा से अवाम बेदार हो सकते हैं और आज़ादी की तहरीक को नई कुव्वत मिल सकती है तो वो इस कुर्बानी के लिए तैयार हैं। उनके चेहरे पर खौफ की बजाय अत्मीनान और वकार नुमाया था, जो उनके नजरियाती यकीन की अलामत था। यही वजह है कि जब उन्हें सजाए मौत सुनाई गई तो पूरे हिंदुस्तान में एक खामोश इज़्तिराब फैल गया। अवाम जानते थे कि ये फैसला महज 3 अफराद के खिलाफ नहीं बल्कि एक पूरी सोच के खिलाफ दिया गया है। फांसी की तारीख करीब आती गई मगर भगत सिंह के हौसले में कोई लग़ज़िश पैदा न हुई। उन्होंने अपने आखिरी अय्याम भी मुताले और तहरीर में गुजारे। कहा जाता है कि जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया गया तो वो एक किताब पढ़ रहे थे और उस अमल में किसी रुकावट पर नाखुशी का इजहार किया। ये मंजर उनके फिक्री इस्तेहकाम और नजरियाती वाबस्तगी की वाज़ेह मिसाल है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। ये फांसी खुफिया तौर पर मुकर्ररा वक्त से पहले दी गई ताकि अवामी रद्द अमल को काबू में रखा जा सके, मगर उसके बावजूद खबर जंगल में आग की तरह पूरे बरसगीर में फैल गई। उनकी शहादत के बाद मुल्क के तूल व अर्ज में एहतजाजी मुजाहरे हुए, तालीमी इदारों में हड़तालें हुई और अवाम ने खुलकर बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। भगत सिंह का नाम एक अलामत बन गया, एक ऐसा इस्तिहारा जो खौफ से आज़ाद, शऊर से भरपूर और कुर्बानी से इबारत था। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद महज एक जुमला नहीं बल्कि एक अहद बन गया जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा। भगत सिंह की विरासत आज भी जिंदा है। वो हमें ये सबक देते हैं कि आज़ादी सिर्फ परचम बदलने का नाम नहीं बल्कि सोच बदलने, निज़ाम बदलने और इंसान को इंसान के इस्तेहसाल से निजात दिलाने का नाम है। उनकी जिंदगी इस बात की गवाह है कि सच्ची जिद्दोजहद वही होती है जो ज़ाती मफाद से बालातर होकर इज्तमाई भलाई के लिए की जाए। यही वजह है कि भगत सिंह आज भी तारीख के सफ़हात में कैद नहीं बल्कि जिंदा ज़मीर इंसानों के दिलों में धड़कते हैं।